Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Knowledge is Power. मीन सब कुछ जो है वो आपकी नॉलेज से ही होता है, आपकी नॉलेज से ही जो व्हील है उनका आविष्कार हुआ था, डिस्कवरी हुई थी। और अगर अभी आप देखोगे तो जितने भी व्हीकल है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो सारा व्हील्स पर ही बेस्ड है। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नॉलेज ओनली, राइट। सो man is superior to all other creature on the earth because of his intelligence. He has been able to discover ways and means to live better, and since the dawn of history man has been constantly in touch of creativity and transformation. Discovery of fire and invention of wheel were perhaps the first step toward the civilization. Later on that, ways of improving his present and future. Today our lives are more comfortable and easy as compared to the past. All the credit goes to those people who had never stopped thinking about the betterment of human society. अब जैसे आप देखो अर्ली ह्यूमन बीइंग थी, उनकी लाइफ कैसी थी और अब हमारी लाइफ जो है वो कैसी है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। कैसे ये पॉसिबल हुआ है? बिकॉज ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग जो हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी को और बेटर किया जाए। ओके, तो दिस इज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी. So the people in early times used sign languages to communicate with each other. Sometimes they tried to convey others by making sounds. These sounds were understood and recognized by all the members of the tribe. These sounds then became words and in this way language was developed. अब पहले लोग क्या साइन से बात करते थे या फिर साउंड से करते थे, धीरे धीरे इन साउंड से लैंग्वेज बनी। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं। People now were able to express themselves by speaking words. They passed on their hard-earned knowledge orally from one generation to another. Gradually, the knowledge grew and the people started feeling the need for recording their knowledge as it became impossible to memorize it. This was the beginning of writing. अब ऐसा हुआ, पहले क्या हुआ, जब आवाज़ डिस्कवर हुई, स्पीकिंग स्किल्स आई, ठीक है, वर्ड्स बने, लैंग्वेज आई, तो लोगों ने अपनी बातें कहनी शुरू की। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लोग अपनी बातों को कहते थे ओरली। धीरे धीरे जब नॉलेज उनकी इतनी ब्रॉड हो गई कि इतनी बातों को याद रखना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने राइटिंग की डिस्कवरी की। तो इस तरीके से जो हम लिखते हैं, राइटिंग है, उसकी शुरुआत हुई। नाउ how the writing came, like the story of writing. फर्स्ट है पिक्टोग्राफी हुई थी पहले। पिक्टोग्राफी क्या होता है? कुछ पिक्चर आपको दी हुई है, इस पिक्चर से आप क्या समझते हो, दिस इज पिक्टोग्राफी। तो पहले ये राइटिंग लैंग्वेज थी। The need for recording knowledge was the starting point of the story of writing. The earliest writings tried by different people were mainly in pictorial form. It was called pictography. ठीक है, जो पिक्टोरियल यानी पिक्चर की फॉर्म में जो होती है राइटिंग, उसको पिक्टोग्राफी कहते हैं। The paintings found in ancient caves, especially the painting of hunting scenes and animals, tell us much more about the way those people lived. अब कुछ आपको पिक्चर्स देख के, सीनरी देख के ऐसा लगता है कि ये पिक्चर कुछ कहना चाहती हैं, ठीक है, तो यस, वो क्या होती है, वो उस टाइम की लैंग्वेज थी, आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से राइटिंग की शुरुआत हुई थी। These pictures with the passage of time were simplified and made symbolic. उसके बाद इतनी पिक्चर को जो ड्रॉ नहीं कर पाता था उसके लिए सिंबल डिसाइड हुए, तो सिंबॉलिक बन गई। These symbols and signs ultimately gave birth to the alphabets and script. और धीरे धीरे ऐसे ही अल्फ़ाबेट डिस्कवर हुई, स्क्रिप्ट डिस्कवर हुई। The earliest sample of writing were in Egypt and Mesopotamia in around 4000 BC. They wrote on clay tablet with the shared edge knife. और किस पे लिखते थे वो? क्ले टैबलेट पे with the sharp edge knife. ठीक है, फिर वो सूख जाती थी, फिर उसको स्टोर कर देते थे। The writing was wedge shaped and was called cuneiform. और उसको क्या कहते थे? क्यूनिफॉर्म। ओके, ये देखो आप, इस तरीके से इजिप्टियन स्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रही है। ये अलग अलग इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं, शारदा, तमिल एंड ब्रह्मी। इस तरीके से लोगों ने सिंबल जो हैं वो डिस्कवर किए। इजिप्टियन को स्क्रिप्ट को कहा गया हायरोग्राफिक
एंड द हायरोग्राफिक राइटिंग वॉज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, साइंस एंड सिंबल। इसमें आप देखो मिक्स है, पिक्चर्स भी हैं, कुछ साइन दिए हुए हैं, कुछ सिंबल दिए हुए हैं, तो ये मिक्स होती थी। ये है इजिप्टियन स्क्रिप्ट, ओके, जिसको हायरोग्राफिक का नाम दिया गया। इवन टुडे अभी भी बहुत सारी ऐसी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट हैं जिनको हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे टेम्पल, किंग्स के जो पैलेस होते थे, मॉन्यूमेंट जो होते थे, उन पर वो यूज़ की गई हैं। जैसे आप देखोगे चाइना में या जापान में जो पिक्टोरियल राइटिंग है वो काफ़ी जगह, काफ़ी मॉन्यूमेंट्स में आप देख सकते हो। इट इज़ नॉट ईजी टू लर्न पिक्टोरियल राइटिंग, वन हैज़ टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड थाउजेंड ऑफ पिक्टोरियल सिंबल्स इवन टू रीड अ सिंपल बुक। एक सिंपल सी पिक्टोरियल बुक को पढ़ने के लिए लोगों को हजारों पिक्टोरियल सिंबल को याद करना होगा। इन इंडिया द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट have been found on the earthen seals of the Indus Valley civilization. These seals are yet to be deciphered. अब इंडिया के अगर हम बात करें, जो पुरानी स्क्रिप्ट हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें मिली हैं, लेकिन ये सील्स जो हैं जिन पे कुछ लिखा गया है वो अभी तक डेसिफर, अभी तक डिस्कवर नहीं की गई है कि इस पर क्या लिखा हुआ है। द नेक्स्ट स्क्रिप्ट डेवलप्ड इन इंडिया वॉज द, उसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो डिस्कवर हुई। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट यूज टुडे हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। आवर नेशनल लैंग्वेज हिंदी विच इज़ इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑल्सो केम फ्रॉम द एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और इस तरीके से उर्दू या रोमन स्क्रिप्ट, इस तरीके से अलग अलग स्क्रिप्ट जो हैं वो डिस्कवर हुई। नाउ नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ नंबर। अब अल्फ़ाबेट राइटिंग तो हमने शुरू कर दी, अब नंबर कैसे शुरू हुए। नाउ पहले आप देखो प्रिमिटिव पीपल यानी कि पुराने जो लोग थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, वो इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था। ये देखो आप इंग्लिश में 1 2 3 4 आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, रोमन में आप इस तरीके से लिखते हो, ये दोनों चीज़ें आप सीखते हो, है ना। नाउ बेबीफोनिया में ये लैंग्वेज होती है, ब्रह्मी में ये होती है, माया, ग्रीक, हिंदी में इस तरीके से आप लिखते हो। तो नंबर्स को कैसे अलग अलग फॉर्म में लिखा गया ये आप देखो। Primitive people used different ways for recording the numbers they needed. Some might have used pebbles and sticks to count the number of animals they were having, while other might have drawn picture of animals on the wall. अब किस तरीके से वो नंबर काउंट करते थे, कुछ तो पेबल्स ले लेते थे यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, कुछ स्टिक्स ले लेते थे काउंट करने के लिए, है ना, और कुछ क्या करते थे, नंबर ऑफ एनिमल को काउंट करने के लिए पिक्चर ड्रॉ कर लेते थे एनिमल्स की। इस तरीके से नंबर राइटिंग शुरू हुई। The Hindus used a numeration system superior to other. It was based on 10, यानी 1 0. It possible developed because we have 10 figures. The Hindus has symbols for each number from 1 to 9. They also invented the symbols शून्य which we call zero. Zero की invention भी इंडिया से हुई थी, right? The numerals now in everyday use are called Arabic numerals because it was from the Arabs that these numerals spread to Europe. और इनको क्या कहते हैं, जो नंबर अब हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4, ये अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं, अरब में डिस्कवर हुए थे, फिर यूरोप में, फिर इंडिया, एशिया में स्प्रेड हुए। The Arabs called the Indian numbers Hindsa, which means of India. Now the concept of zero and the decimal system are also India's contribution to the science of numerals. Zero और decimal system ये दो चीज़ों की डिस्कवरी जो है नंबर सिस्टम में, ये हमारी कंट्री में हुई है। This is our contribution. Thus the international numerals are originally based on the Indian system. इसलिए हम कह सकते हैं इंटरनेशनल न्यूमरल, क्योंकि ज़ीरो हर जगह लगता है, डेसिमल सिस्टम हम यूज़ करते हैं, तो वो इंडियन सिस्टम पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट हुई। Books were originally written and compiled by hand. Many scholars spent their entire life in writing few books. Also, it was also not possible to have many copies of such books. Thus, the spread of knowledge was limited to a very small number of people. क्योंकि उस टाइम कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी तो उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं हो सकती थी। जो लोग लिखते थे, जिनके पास एक्सेस होता था, वो बुक मिलती थी, उन्हीं के पास वो नॉलेज रहती थी, राइट। सो द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। और आर्ट ऑफ प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ सबसे पहले कहाँ पे, चाइना में।
लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट थी. इट वॉज जॉन गटनबर्ग ऑफ जर्मनी हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1455. द बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक जिसको प्रिंट किया गया. इट वॉज प्रिंटर ऑन शिप स्किन एंड नॉट ऑन पेपर. बाइबल सबसे पहली बुक थी जिसको शिप की स्किन पर प्रिंट किया गया था, पेपर पर नहीं, क्योंकि उस टाइम पेपर की डिस्कवरी नहीं हुई थी. सो फॉर ईच अल्फ़ाबेट अ लार्ज नंबर ऑफ लेटर टाइप्स वर मेड एंड दे वर यूज्ड टू print the matter of a book. Ink was applied on the letter types and then it was pressed by hand on a piece of smooth सरफेस. अब देखोगे ऐसे प्रिंटिंग होती है तो ऐसे हर एक अल्फ़ाबेट बनाया गया, फिर उस पर इंक लगाई गई, फिर उसको प्रेस करके उसको प्रिंट किया गया. सो द सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग इम्प्रूव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. धीरे धीरे प्रिंटिंग का सिस्टम भी इम्प्रूव हो गया. न्यू एंड लार्ज मशीन जो है वो डेवलप हुई प्रिंटिंग के लिए, जो बहुत कम कॉस्ट में बहुत क्विकली प्रिंट कर देती थी. नाउ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अब काफ़ी एडवांस्ड है. आप एक ही कुछ ही टाइम में एक बुक की बहुत सारी फ़ोटोकॉपी निकाल सकते हो. न्यूज़पेपर जो है ये भी एक प्रिंटेड मटेरियल है. कुछ ही घंटों में न्यूज़पेपर छप जाते हैं इतने सारे. टुडे वी आर इन द एज ऑफ नॉलेज एक्सप्लोजन एंड द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हैज़ हेल्प्ड अस इन द स्प्रेड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज. क्योंकि अब सबके पास एक्सेस है, हर जगह न्यूज़पेपर जा सकते हैं, आप इजीली कोई भी बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रिंटिंग के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है कि आपकी नॉलेज जो है वो हर जगह स्प्रेड हो. नाउ नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ पेपर. अब पेपर कैसे डिस्कवर हुआ? द स्टोरी ऑफ पेपर इज मच ओल्डर देन द स्टोरी ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. इन एंशियंट टाइम्स मैन यूज टू राइट ऑन लीव्स, क्ले एंड barks. द अर्ली इजिप्टियन मेड पेपर फ्रॉम अ वाटर प्लांट कॉल्ड पेपिरस. ठीक है, पहले एक पेपर बनाया जाता था वाटर प्लांट से जिसका नाम था पेपिरस. एंड द वर्ड पेपर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पेपिरस. और जो पेपर हम कहते हैं ना, तो वो इसी वर्ड से ड्राइव हुआ है. Papyrus is a kind of reed that grows in plenty in the Nile Delta, and the thick stem of the papyrus plant were cut and peeled them apart and then laid crosswise and pressed down to the stick them together. इसका पल्प जो है उससे पेपर बनाया जाता है. जब ये ड्राई हो जाता है तो इसकी शीट बनाई जाती है जिस पर लिख सकते हैं. बट इट वॉज नॉट अ पेपर. द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर बिगेन इन चाइना नियरली 2000 ईयर एगो. लेकिन ये प्रॉपरली पेपर नहीं है, पेपर टाइप का है. तो पेपर कहाँ से शुरुआत हुई? पेपर की शुरुआत हुई चाइना से. So the Chinese soaked old rags in water for a long time and then pulped them. एंड उसके बाद क्या करते थे वो ओल्ड रैग जो होती थी, ओल्ड बोरी जो होती थी, ठीक है, वो उसको काफ़ी देर पानी में सोक कर देते थे, फिर उसको पल्प बना लेते थे. दिस आर्ट स्प्रेड फ्रॉम चाइना टू मेसोपोटामिया एंड लेटर टू यूरोप. टुडे ऑल काइंड्स ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड एंड मशीन फॉर मेकिंग पेपर हैव बीन डिस्कवर्ड. और अब आप देखोगे किस टाइप से उन्होंने पेपर बनाना शुरू किया था. अब आप देखोगे पेपर बनाने के लिए अलग से प्लांट उगाए जाते हैं, उनसे पेपर बनाया जाता है. पेपर जो है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, क्योंकि बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर सब कुछ किस पर बेस्ड है? पेपर पर बेस्ड है. नेक्स्ट है अ स्क्रिप्ट एंड बुक्स फॉर ब्लाइंड, जिसको कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट. ठीक है, ब्लाइंड पीपल जो है वो भी पढ़ सकते हैं. तो इतना एडवांस आ चुके हैं अब हम, राइट. ब्रेल स्क्रिप्ट, अ स्क्रिप्ट यूज्ड बाय ब्लाइंड पीपल, वाज डिवाइज्ड इन 1821 बाय फ्रेंचमैन लुइस ब्रेल. किसने डिस्कवर किया था? फ्रेंचमैन लुइस ब्रेल ने. ओके, इस तरीके से डॉट डॉट करके ये बनाए जाते हैं. और जो ब्लाइंड पीपल होता है वो फिंगर से ये जो उभरी हुई डॉट्स होती हैं, अपलिफ्ट डॉट्स होती हैं, उन पे अपनी फिंगर रन करते हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हैं. सो द ब्रेल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्फाबेट्स फॉर द ब्लाइंड एंड हैज हेल्प्ड मैनी ब्लाइंड पीपल टू इंजॉय द प्लेजर ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. टुडे ब्लाइंड स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए अलग स्कूल्स हैं. ठीक है, नॉर्मल स्कूल्स में भी उनको ऐसी फैसिलिटी दी जा रही हैं ताकि वो कॉमन बच्चों के साथ पढ़ सकें. ऑडियो कैसेट अवेलेबल होती हैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो सुन सकें. एंड सच टेप्स आर कॉल्ड टॉकिंग बुक्स. नेक्स्ट है लिटरेसी एंड प्रोग्रेस.
Literacy is the key to knowledge. The country's progress and development in any field depend upon the level of literacy and education of its people. लोग कितने पढ़े लिखे हैं, किसी कंट्री में कितनी डेवलपमेंट होनी है, वो वहाँ के लोगों में एजुकेशन सिस्टम क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, कितने लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है. We must promote literacy and education. The literate and well-trained person can help in the development of resources. The government has now taken various steps to promote literacy throughout the country. The literacy program based on the slogan each one teach one is one such step. Okay? तो आजकल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है ताकि सब लोग जो हैं वो पढ़ सकें. Now just have a look on the glossary. First word है script. Script होता है a system or style of writing. Papyrus, that is a water plant with thick stems mainly grown in the Nile Delta. Braille, system of reading and writing for blind people. Now let us revise the chapter. First है the people in early times used sign languages to communicate with each other. The earliest samples of writing were found in Egypt and Mesopotamia. Our national language, Hindi, which is in the Devanagari script, also came from the ancient Brahmi script. The Arabs called the Indian numerals Hindsa, which means of India. John Gutenberg of Germany invented the first printing press in 1455. The word paper has been derived from the word papyrus. And Braille script, a script used by blind people, was devised in 1821 by Frenchman Louis Braille. And the country's progress and development in any field depend upon the level of literacy and education of its people. So this is the chapter बच्चे. Now just have a look on the exercise. First है आपका which was the first book to be printed on printing press. सबसे पहले कौन सी बुक थी जो प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हुई थी? बाइबल. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आप क्या करोगे, टिक करोगे. बी है आपका ट्रू फॉल्स. फर्स्ट है इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम रोमन स्क्रिप्ट. क्या इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट से डिराइव की गई है? यस. तो आप इसमें क्या लिखोगे, टी. ओके, तो इस तरीके से आप रीड करोगे एंड राइट डाउन टी एंड एफ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. नेक्स्ट है मैचिंग. यू हैव टू मैच विद द करेक्ट वर्ड. फर्स्ट है बाइबल. बाइबल इज फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड. ओके, तो इस तरीके से आप करेक्ट के साथ मैच करोगे. नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग. द फर्स्ट इज द जर्मन हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस. किसने इन्वेंट की थी? सर ग्यूटेनबर्ग ऑफ जर्मनी. ओके, तो इस तरीके से आप नाम लिखोगे कि किसने क्या इन्वेंट किया है. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द अर्ली मैन कम्युनिकेट. अर्ली मैन कैसे कम्युनिकेट करते थे? थ्रू साइन एंड साउंड्स. ओके, What was the achievement of Louis Braille? Louis Braille ने क्या अचीव किया? ब्लाइंड पीपल के लिए उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नंबर्स. इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है नंबर्स में? डेसिमल सिस्टम और आपका जीरो, वो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है. हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज. कैसे प्रिंटिंग प्रेस जो है वो स्प्रेड ऑफ नॉलेज में हेल्प कर सकती है. नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस. नेक्स्ट इज हाउ डिड द इजिप्टियन मेक पेपर. इजिप्टियन कैसे पेपर बनाते थे. एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप एक बार फिर से चैप्टर रीड करोगे और ये खुद करोगे. नाउ लेट्स टू में आप करोगे नेम एनी मूवी मेड ऑन ब्लाइंड पीपल. कोई ऐसी मूवी का नाम लिखो जो ब्लाइंड पीपल पर बनाई गई है. नेक्स्ट है नेम एनी वन कंपनी दैट मैन्युफैक्चर पेपर. नेम एनी वन कंपनी जो मैन्युफैक्चर पेपर, जो पेपर बनाती है, उस कंपनी का नाम लिखोगे. एक्टिविटी कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनी 4 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. वर्ल्ड की 4
जो हैं स्क्रिप्ट जो है उनके पिक्चर कलेक्ट करोगे और अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करोगे और उनका नाम भी लिखोगे, कौन सी कंट्री से है, कौन सी स्क्रिप्ट है। सेकंड है ट्राई टू रिकॉग्नाइज ऑल द स्क्रिप्ट प्रिंटिंग ऑन आर करेंसी नोट। जो हमारा करेंसी नोट है, ठीक है, उस पर कितनी स्क्रिप्ट जो हैं वो बनाई गई हैं, क्या उनमें लिखा गया है, वो आप डिस्कवर करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे उनको। सो दिस इज द चैप्टर बच्चे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। एक बार फिर से आप इसको रीड करेंगे और जो एक्सरसाइज बची है और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप खुद करोगे।